Okay, so can you start with your introduction, please? Sir, my name is Abhishek Sharma, and I have done my schooling from KVNR, and then I have done my BTech from Electrical Engineering from Galgotia Institute of Engineering and Technology, Greater Noida. Then I have started preparing for GATE exam, and currently I am doing my masters from IIT Kharagpur. Okay, so when did you graduated? Sir, I have graduated in 2017. Okay, great. So what you did for the in between period from Sir, 17 to 21 around? Sir, as a part-time uh, job, I have done uh, subject matter expert in Czech, Okay. and I continued my study for GATE. What was your gate rank? So Yeah. this year my GATE rank is 759, 659. Okay, so currently you are into first semester of MTech or what? Sir, my second semester has been over, and it Okay. is a period of internship. Okay, fine. So you are doing in aerospace, right? Yes, sir. So why you opted aerospace being an electrical fellow? Sir, the main goal after BTech is to join PSU, but then I thought to explore more subjects, more fields. So I have joined aerospace. But I believe if you will complete your masters from here, you will get much good opportunity also. Sir, I have, uh, uh, I wanted to join the old IITs, and I have also filled the electrical branches in them, but I didn't get the opportunity there. So I have Kharagpur is the old IIT. Don't you think it's the old IIT? no, sir. In ISA Bangalore, in IIT Delhi, I have filled for electrical engineering, and in Kharagpur, I have filled aerospace so that I get called, I get seat. मतलब कहने का मतलब तुमने खड़गपुर सिर्फ आईआईटी के टैग के लिए लिया कि तुम्हें मिल जाए बस, हाँ? ऐसा we can say. And also also wanted to join aerospace in control field. अच्छा, कौन कौन से कोर्सेज है तुम्हारे अभी एमटेक में जो तुम पढ़े हो? सर propulsion हो गया, एरोडायनेमिक्स हो गया, स्ट्रक्चर्स हो गया, and aircraft stability and control, and aerodynamics, and space dynamics, and satellite navigation and control. ओके, टीएचडीसी के बारे में क्या जानते हो? व्हाट इज द बेसिकली की रोल्स ऑफ टीएचडीसी? व्हाट आर द की प्रोजेक्ट्स ऑफ टीएचडीसी? So THDC works in four fields. One is hydro energy, second is wind, third is solar, and fourth is thermal. ओके, Uh, फाइन. is So what is your area of interest out of these all? Where you have more interest? hydroelectric. Why so? Sir, because um, and the synchronous machines which are used in hydro power plants, they are taught in our syllabus somewhat. ओके, फाइन. तो आप स्टेबिलिटी की बात कर रहे हो, मुझे ये बताइए, पावर सिस्टम और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स दो चीजें हैं, दो सब्जेक्ट आपने पढ़े होंगे अपने बैचलर में, राइट? ओके. Yes, sir. Yes, sir. तो पावर सिस्टम और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड है फ्रॉम अ पॉइंट Sir, ऑफ पावर इंजीनियर? power electronics basically works in high efficiency. हम्म. Uh, for small signal input, it gives a high. Nee, for large signals input, it gives high energy. हम्म. For example, our power thyristor, power वो diodes. देखो बहुत स्पेसिफिक एग्जांपल ले रहे हो आप यार. मैं ब्रॉडर सेंस में कह रहा हूँ, ठीक है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक एग्जांपल. जैसे इन्वर्टर पढ़ते हो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, राइट? इन्वर्टर Yes, का क्या रोल होता है, बताओ. sir. Inverter basically changes DC into ACs.
अच्छा ठीक है, इन्वर्टर ने ये काम कर दिया जो तुम कह रहे हो, मान लो। तो अब पावर सिस्टम का यूज क्या होता है उसमें, उसको उसके अगली स्टेज में पावर सिस्टम का क्या यूज होता है? कोई यूज होता है पावर सिस्टम का? सर पावर सिस्टम, सर पावर सिस्टम इसमें जनरेशन होता है, ट्रांसमिशन होता है, प्रोटेक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो ये सब जैसे काम आज की करता डेट है। में हम बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की, सोलर एनर्जी सबकी बात करते हैं, ठीक है, मान लो आपने एनर्जी जनरेट कर दी है, बट Yes, sir. आगे उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे उसको बेसिकली चैनलाइज करना है, उसमें पावर सिस्टम कोई रोल प्ले करता है क्या? हेलो, एम आई ऑडिबल? राजीव सर, एम आई ऑडिबल? हेलो, Yes, sir. उसमें सर हेलो, 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 एम आई ऑडिबल? अभिषेक, आवाज आ रहा है मेरा आपको? यस सर। ओके, यस, माय क्वेश्चन इज कंप्लीटेड, कैन यू टेल मी द आंसर? इसे पावर कितनी हमको कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करनी है, कितना ट्रांसमिट करना है, कितना जनरेट करना है, ये सब सर पावर सिस्टम में हम करते हैं। ओके, स्टेबिलिटी का डेफिनेशन क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेबिलिटी फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू? सर when there is any disturbance in the signal, then our system should be able to um, it should able not should be able to stabilize after the disturbance. What is the meaning of that stability again, na? But again, you are using the word stabilize. Tell me in layman language, okay? I'm not asking from specific some component etc. point of view. सर अगर हमारे पास कोई ज़्यादा डिस्टरबेंस आ जाए लिमिट से ज़्यादा, तो हमारा जो सिस्टम है वो उसको ध्यान में रख के आगे अपना काम कर रहे हैं, मतलब इट शुड बी Okay, रनिंग। जैसे आपके पास कोई हाइड्रो पावर प्लांट है, तो वहां पे डिस्टर्बेंसेस क्या क्या हो सकती है? व्हाट कैन बी द सोर्सेज ऑफ डिस्टर्बेंस अकॉर्डिंग टू यू? सर उसमें जैसे वाटर का फ्लो ज़्यादा हो जाए, हम्म। कम हो, ज़्यादा ही हो जाए, कि अचानक से डैम टूट जाए, डैम तो सर नहीं टूटेगा, मतलब फ्लो, वाटर फ्लो मेरे ख्याल से ये डिस्टर्बेंस रहेगा मेनली। But you are not sure about this, huh? यस सर। ओके, फाइन। देखो, एक हम बात करते हैं पावर डिवाइस की, राइट? एक हम यस सर। बात करते हैं सिग्नल डिवाइस की। यस सर। जैसे हम कहीं बोलते हैं पावर डायोड, कहीं पे हम बोलते हैं सिग्नल डायोड, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? कोई डिफरेंस होता है या बस नाम का डिफरेंस है? सर एक तो पावर डायोड जो होते हैं वो ज़्यादा पावर को हैंडल कर सकते हैं, ऐसा क्यों होता है? और ऐसा क्या फर्क होता है? कोई कंस्ट्रक्शन में फर्क होता है, कोई मटेरियल कंपोजिशन में फर्क होता है, ऐसा क्यों होता है? सर पावर डायोड में जो बीच में अपना वो जंक्शन बनता है, पी एन एन जंक्शन, कौन सी लेयर होती है सर, आई हैवंट रिवाइज प्रॉपर्ली। ओके, देखो, कोई भी आपके पास एक डिवाइस होगा, सेमीकंडक्टर डिवाइस आप यूज कर रहे हो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, राइट? जब मैं उसको ऑन स्टेज से ऑफ स्टेज में ले जाता हूँ, तो क्या वो सडनली ऑफ हो जाता है या फिर कुछ टाइम लेता है प्रैक्टिकली? सर वो थोड़ा सा टाइम लेता है। वो टाइम को क्या बोलते हैं हम? कम्युनिकेशन इंटरवल। कम्यूटेशन टाइम, यस सर। स्टोरेज टाइम और ट्रांजिशन टाइम के बारे में सुना है? यस सर, स्टोरेज टाइम। स्टोरेज टाइम, ट्रांजिशन टाइम और रिवर्स रिकवरी टाइम, तीनों में क्या रिलेशन होता है? सर रिवर्स रिकवरी टाइम में जब हमारा करंट जीरो हो जाता है उसके बाद हम नेगेटिव वोल्टेज देते हैं, तो जितनी देर के लिए नेगेटिव वोल्टेज हम देते हैं वो वाला टाइम जो होता है रिवर्स रिकवरी टाइम होता है, ताकि उसके पास फिर से ब्लॉकिंग कैपेसिटी आ सके आर यू ट्रांजिस्टर श्योर के पास। जो तुम बोल रहे हो सही है वो? अच्छा, किसी भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के लिए किस रेंज में होता है ये? सेकंड्स में होता है, मिली सेकंड्स में होता है, या कोई पता है कुछ स्पेसिफिकली प्रैक्टिकली कितना रेंज में होता है रिवर्स रिकवरी टाइम? सर इट इज इन माइक्रो सेकेंड। ओके,
यार देखो अभिषेक, लेट मी गिव यू बिट ऑफ ब्रीफ। सबसे पहली चीज है कि आपका इंट्रोडक्शन क्लियर नहीं है। आप इंट्रोडक्शन कैसे करोगे? सर, माय नेम इज अभिषेक शर्मा एंड currently I am pursuing my MTech from IIT Kharagpur in aerospace engineering, and prior to this I have completed my BTech from this university in this specialization, right? अगर वो पूछते हैं कि बीच में आपने क्या करा है, तो बोलो कि सर माय अल्टीमेट गोल वाज ऑलवेज to basically be the part of premier organization, be it in term of the job perspective or be it in term of the educational perspective, क्योंकि एजुकेशनल में भी तुम एक प्रीमियर के साथ जुड़े हो, ठीक है? आगे बात समझ लो, अब तुम जहाँ पे जॉब के लिए जा रहे हो वो भी प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है। तो अगर तुम ऐसा बोलोगे माय अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव वाज ऑलवेज टू ज्वाइन सम आईआईटी, तो क्वेश्चन आएगा तुम छोड़ क्यों रहे हो फिर? इसलिए सिंपल बोलना कि माय अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव वाज ऑलवेज टू start my career with the premier organization, be it in education or be it in the professional world, right? Okay, समझ गए बात? तो आप उसमें ये बोल सकते हैं कि सर सिंस आई हैव अ डीप इंटरेस्ट इन द कोर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, but unfortunately here I didn't get opportunity to learn the core subjects, but yes I am studying some subject related to control and stability here in my domain. Okay, yes, but I'm not satisfied with the kind of work I'm doing here. अगर आपने छोड़ना है ये चीज तो तब ये चीज बोलनी है, right? So sir, I believe in THDC I will get opportunity or hands-on experience or exposure on the practical electrical engineering work. Okay, बट सर अगेन अगर वो बोलेंगे कि तो तुमने ज्वाइन क्यों किया, तो आप ये बोल सकते हैं कि सर ज्वाइनिंग एंड स्पेंडिंग 1 year here in the IIT Kharagpur is not only that I am grown up in technical sense only. The kind of people I have shared time here, the kind of learning I get from the people and professor, that is definitely helpful for me as an individual, and I believe they will help me a lot in my corporate sector also. Is it clear? Okay, कहीं पे भी आप जब जाते हो आईआईटीज में भी, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोगों से आप मिलते हो। तो लर्निंग वहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं कि टेक्स्ट बुक या फिर जो आप कोर्स कर रहे हो उसी की लर्निंग होती है, लाइफ की एक ओवरऑल लर्निंग और भी होती है चीजों की। तो वो आप बता सकते हैं अगर किसी स्टेज पे जाके आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो दूसरा चीज ये है कि अगर आप टीएचडीसी में जा रहे हो, आप बोलो कि मेरे को मशीन में इंटरेस्ट है जैसे आपने बताया, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम का आपको आइडिया क्लियर होना चाहिए, पूछेंगे आपसे, ठीक है? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, एक फेज है, उसको आपको आगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से आपने क्या कर दिया, कन्वर्जन कर दिया, जनरेशन कर दिया, आगे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, इंप्लीमेंट करना, उसके लिए कहीं ना कहीं आपको पावर सिस्टम टूल्स का यूज तो करना पड़ेगा ना, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग का यूज करना पड़ेगा। तो आंसर लेमैन लैंग्वेज में रखो, बहुत ज्यादा एक इंडिविजुअल मत हो जाओ। ऐसा नहीं कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से तुम थायरेस्टर डिफाइन करने लग जाओ, पावर सिस्टम में तुम कोई बस को डिफाइन करने लग जाओ, वो तो एक कैटेगोरिकल डिफरेंशिएशन हो गया। समझ रहे बात यहाँ से? ठीक है, तो आपका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, वो आपका यूनिवर्सल डिफरेंशिएशन होना चाहिए जो लेमैन लैंग्वेज में डिफरेंशिएशन है। क्लियर? जो रिवर्स रिकवरी टाइम होता है वो सम ऑफ बोथ होता है, स्टोरेज टाइम एज वेल एज द ट्रांजिशन टाइम, और मोस्टली रेंज करता है नैनो सेकंड में। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, राइट? तो थोड़ा सा आपको चीजें पढ़नी पड़ेगी बेसिक लेवल पे यार। पीएसयूज में वो बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं पूछते हैं, बट ओवरऑल आइडिया आपको होना चाहिए, बहुत जरूरी। और कॉन्फिडेंस रखो, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहा है वहाँ पे। ओके, राइट? तो नेक्स्ट राजीव सर विल कंटिन्यू विद यू, प्लीज सर। अच्छा अभिषेक, यस सर। आवाज आ रही है? यस अभिषेक, अभी आपका एमटेक फर्स्ट ईयर है सेकंड ईयर है? सर, सेकंड ईयर स्टार्ट इज अबाउट टू स्टार्ट। आपका थीसिस क्या है? सर सर सॉरी सर। थीसिस सेकंड ईयर थीसिस किस पे काम कर रहे हैं आप? सर यूएवी यूएवी नेविगेशन। इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? सर यूएवी नेविगेशन में सर हम जो वो होता है अपना, कोई भी ऑटोनोमस व्हीकल होगा तो उसको हम कैसे नेविगेट कर सकते हैं। जैसे कि किसी भी अननोन टेरिटरी में वो अपनी पोजीशन बताएगा, फिर अपने आप से खुद से पाथ डिफाइन करके आपका टास्क पूरा कर सकता है। इसमें आप कर क्या रहे हैं? कैसे चीजें ऑब्जेक्टिफाई हो रही है? सर इसमें अभी तो सर थर्ड सेमेस्टर से स्टार्ट होगा। अभी सर इंटर्नशिप पीरियड चल रहा है, ये 2 महीने का इंटर्नशिप सर इस समय कंपलसरी है, वो चल रहा है। अच्छा, इंटर्नशिप कहाँ से कर रहे हैं आप? सर इंटर्नशिप अभी प्रोफेसर के अंडर में ही कर रहा हूँ। तो बेसिकली आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है ना, बीटेक? यस सर। ओके, एंड दिस जॉब इज फ्रॉम द गेट।
Yes, sir. What are the subjects you have prepared? Sir, power system, power electronics and machines. चलिए, एरोस्पेस में आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, Yes, तो sir. एरोस्पेस की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है कम्युनिकेशन की? Aerospace में communication रेडियो की फ्रीक्वेंसी? sir, I don't know. प्रेशर कितना होता है इंटरनल एयर प्रेशर? Sir, really, sir, I don't know. फेवरेट सब्जेक्ट कौन से हैं आपके? Sir, aerospace में नहीं नहीं, इलेक्ट्रिकल में। sir, electrical में machines, power system. मशीन आपके फेवरेट। मोटर का इस्तेमाल होता है क्या एरोप्लेन में? Sir, aeroplane में motors का इस्तेमाल। आपका Yes, sir. डेटा Starting में yes, sir. 1.5 ईयर तो आपका एमटेक हो गया ना, तो पता होगा ना एरोस्पेस में क्या क्या चीजें यूज होती है। Yes, sir. मोटर्स का होता है सर इस्तेमाल। सर स्टार्टिंग में जो टरबाइन होती है उसको स्टार्ट करने के लिए हमको स्टार्टिंग में पावर्स की ज़रूरत होती है, तो ऑक्सिलरी मोटर्स लगे होते हैं, जनरेटर्स। तो मोटर स्टार्टिंग कंट्रोल में मोटर कंट्रोल कैसे करते हैं? मोटर्स को कंट्रोल इट शुड बी ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड। ऑटोमेटिक ऑटोमेशन क्या होता है? Automation is a predefined steps which the machine अच्छा, does. टीडी किस सेक्टर में काम करती है? Sir, THDC, hydrothermal, wind and solar. थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी कितनी होती है? Efficiency sir 40% approx, I think. सॉरी। Sir 40%. ओके। क्या इसकी एफिशिएंसी और बढ़ाई जा सकती है क्या, इसके बॉयलर को चेंज करके? Sir बढ़ाई जा सकती है, but it is in the optimum range nowadays. ठीक है। इकोनोमाइजर क्या होता है? Sir economizer. So I don't remember. सॉरी। I don't remember. I have forgotten. तो यू आर बेसिकली इन खड़गपुर ना? अभिषेक। Yes, sir. बेसिकली इन खड़गपुर। Hello. Yes, sir. हेलो। Hello. Yes, sir. Am I audible? या यू आर ऑडिबल। Yes, sir. I am in Kharagpur. ओके, द हॉस्टल दैट यू गॉट इज एलबीएस। Yes, sir. ओके। Okay, listen. What is the how the power distribution in the all the hostel in the Kharagpur has been designed? Power distribution, sir. Yeah. Is there an overhead line or underground? Underground. Sir, it is a overhead. Um, the overhead. There is a overhead line for transmission, and For the all transmission, I'm talking about the for distribution. and distribution. Have you seen any transmitting line or overhead line in your campus? Yes, sir. There is a overhead line, transmission line in campus. Distribution. For distribution, it is underground. What is arcing ground? Earthing ground is when there is a fault in one phase, then in other two phases voltage gets uh, peaked, and the insulation and they damage the insulation of the other two phases. Okay, what are the method for reducing the arcing ground?
There's inductance. We use inductance. Basically, we use ओके अभिषेक, shunt. अभिषेक बी नॉर्मल, ओके, बी नॉर्मल समझ में आती है ना, हिंदी समझ में आती है? Yes, sir. ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन में क्या डिफरेंस है? सर डिस्ट्रीब्यूशन में हमको एक न्यूट्रल वायर की ज़रूरत होती है, और डिस्ट्रीब्यूशन हम बाद में यूज़ करने के लिए, मतलब घरों में ताकि एनर्जी घरों में पहुँचे, इसके लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। ट्रांसमिशन में हम थोड़ा एनर्जी इफिशिएंसी देखते हैं कि हमारा ज़्यादा एनर्जी लॉस ना हो, तो उस हिसाब से हम हाई वोल्टेज यूज़ करते हैं ट्रांसमिशन में। चलो ये बताओ, पीएचडी से जो पावर सेक्टर में काम करती है, ठीक है, इनका टोटल रेवेन्यू कितना है इन फाइनेंशियल ईयर? सर आई डोंट नो, मे बी आई थिंक 2000 crore। रेवेन्यू में और इनकम में क्या डिफरेंस है? Sir, revenue is included in it is including all the expenditures and all the cost, total of all the cost, and income is ओके, it denotes all the profits. what is the biggest challenge that THDC is facing nowadays? It is Mini Ratna, Sir, it is a Navratna or Maharatna. mini Ratna Schedule A company. How this categorization has been done? So I think it is categorized on the basis of senior executive salary building. Salary. Salary. उससे इंटरव्यू कब है तुम्हारा? So it is on 26. कब है? 26. उससे क्या कर दो, कॉन्फिडेंस कहाँ है तुम्हारा? तुम्हारा ये जो टीएचडी से कब क्वालिफाई किया तुमने, कौन से गेट ईयर में है? Sir, 2022. हाँ 22. 2022. अच्छा, 22 में आपका है। 23 से भी कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आई क्या आपके पास? No, sir. बी लॉर्ड, अब से थोड़ा सा बोलने की कोशिश कीजिए, बताइए। No, sir. Sir, this year my rank is around 1600. और 2022 में कितने थे? 659. मतलब यू आर ऑन द बॉर्डर सिलेक्शन। Yes. और इस तरह से आपका कॉन्फिडेंस रहेगा तो किस तरह से इंटरव्यू निकलेगा फिर? नॉलेज है आपके पास, थोड़ा कॉन्फिडेंट रहिए। इस तरीके से आप डर डर के बात कर रहे हैं। देखो अभिषेक, सबसे पहले तो तुम टीएचडीसी के बारे में जानो, वो काम क्या करती है, कौन कौन से नए प्रोजेक्ट हैं, टोटल रेवेन्यू कौन है, कौन से उनके मार्केटिंग हेड है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, उस जो वो काम करते हैं उसके बाद उसमें देखो कि वो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। ट्रांसमिशन इज फॉर द हाई ऑपरेटिंग वोल्टेज जो कि लॉन्ग डिस्टेंस में काम आती है, डिस्ट्रीब्यूशन इज फॉर द लोकल ऑपरेटिंग रेंज। ठीक है, तो मैं तुमसे यही पूछ रहा था। आप जहाँ रह रहे हैं एरोस्पेस के बारे में देख लीजिए, एरोस्पेस कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी का नॉर्मल। आप इंटरव्यू इज टोटली अबाउट यू, ठीक है, आप क्या क्या करते हैं और कंपनी क्या क्या करती है, इसके आसपास का पढ़िए आप। पीएसयू है, कोई आपसे इंडेक्स क्वेश्चन ज्यादा पूछा नहीं जाएगा। समझ रहे बातों को मेरी? Yes, sir. ठीक है, आपका एमटेक क्या है, आपका बीटेक क्या है, आप किसमें आप एमटेक का स्पेशलाइजेशन क्या है, उसके रिलेटेड आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उसके बाद जो कंपनी प्रोफाइल है वो किस प्रोफाइल में काम करती है वो वहां से क्वेश्चन आएगा। इट इज एज सिंपल एट इज।
हो सके तो आप सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन आ सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं सब्जेक्ट में तो। सेक्शन में यू हैव द और चेसिस जब कोई पूछे तो इस तरह से ये नहीं बताना कभी शुरू नहीं हुआ है। यू हैव टू बी इट इन द कंटिन्यूअस। ठीक है, इनकम्प्लीट आंसर नहीं देना है, आपके सारे आंसर इनकम्प्लीट। ओके, यस सर। कोई क्वेश्चन? सर इसमें सर एचआर राउंड नहीं हुआ, जो बच्चे एचआर दे राउंड चुके हैं। यही है, एचआर राउंड यही है आपके, इंट्रोडक्शन है नेम। एचआर से ज्यादा आते नहीं है। ठीक है, एंड सर इसमें प्रोजेक्ट, समर इंटर्नशिप बीटेक में ये भी पूछ सकता है। एमटेक कर रहे हैं ना आप, बीटेक से नहीं आएगा। आप एमटेक कर रहे हैं, आपसे एमटेक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आप अभिषेक, करंटली कर रहे हो वहां से क्वेश्चन आएंगे। अभिषेक जो तुम करंटली कर रहे हो अभी उस पर फोकस करो, बिकॉज दे विल बी क्यूरियस टू नो तुमने एमटेक में 1 साल में क्या सीखा है, राइट। एचआर का मतलब ये नहीं होता है कि तुम्हारे हॉबीज क्या है, ये सब क्या है, वो बहुत कम पूछे जाते हैं। इनकेस अगर पूछा भी जाएगा तो हम्म। ऑब्वियसली बात है, यू कैन डिफेंड देम, राइट। द मोर थिंग दे विल बी इंटरेस्टेड इन डूइंग, तुमने 1 साल में क्या सीखा है टी खड़गपुर में। तुम देखो, बहुत सारे बच्चे गैप की बात करते हैं। गैप का मतलब क्या होता है? गैप वो होता है जहाँ पे आपने कुछ किया नहीं। अगर आप कहीं पे कुछ भी कर रहे हो तो आपकी लर्निंग क्या है, अगर आप वो जस्टिफाई करते हो कि आपकी लर्निंग की है तो वो गैप नहीं होता, राइट। ओके। दूसरा चीज है कि आपके जो बीटेक के सब्जेक्ट है, टीएचडीसी के बारे में पढ़ लो थोड़ा सा। इज इट क्लियर? जो आप सब्जेक्ट बोल रहे हो उसमें जब आप कंफर्टेबल नहीं होंगे, देन यू आर थिंकिंग अबाउट दो स्टफ जो आपसे कम पूछी जाएगी। मोस्टली बीटेक की इंटर्नशिप वगैरह तब पूछते हो अगर आप बीटेक ओनली है। अभी आपसे एमटेक के बारे में तब पूछेंगे बट इतना नहीं पूछेंगे, राइट। ओके। So confidence is lacking a lot. I don't know why. That I have told in the beginning also. Right? I don't think you have prepared truly. Have you prepared honestly? Tell me. नो सर, Hmm? नहीं सर, बस सही से नहीं था। हाँ जी। आपसे प्रिपेयर करके नहीं आप क्या करिए, कंटेंट लूज होता है। I mean when you are fully prepared, ना, right? But I don't find that you are fully prepared. आपको लगा कि you are fully prepared? आप prepare करके दे रहे थे इंटरव्यू? नो। तो आप प्रिपेयर करके दीजिएगा अगला, एटलीस्ट जो इंटरव्यू उसको प्रिपेयर करके दो। ओके, राइट। एंड सी, मॉक का मतलब होता है कि जो आपको सजेशन दिए जाते हैं उनको अगले में इम्प्रूव करो। ऐसा नहीं होता है कि जो इधर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि वो वहीं पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, राइट। मॉक का मतलब होता है कि जो आपको यहाँ पे सजेशन दिए जा रहे हैं, क्या आप वो अगले इंटरव्यू में इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तब इम्प्रूवमेंट है। अगर आप अगले इंटरव्यू में आके वापस यही चीजें कर रहे हो, फिर फायदा क्या है मॉक का? देयर इज नो बेनिफिट ऑफ दैट, राइट। ओके, राइट। तो as instructed by me and as instructed by sir, follow those guidelines. Okay. Okay, fine. Anything else you want to ask? No, sir. Sir, how to prepare for these subject for machine power system? राजीव सर मतलब बताओ जरा। अरे देखो, ये इसके बेसिक देख लो ना, 4 मशीन है, 4 मशीन के वर्किंग पूछे जाएंगे आपसे। इसमें क्या ही है, मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे बनता है, टॉर्क कैसे डेवलप होती है, इक्वेशन क्या होता है। चार तो मशीन, 4-5 मशीन है, और मशीन के मोटर के एप्लीकेशन। सब्जेक्ट में जो बेसिक बेसिक जो टॉपिक होते हैं वैसे वही सब आते हैं। मैं आपको स्टार्टिंग में बोला था ना, जो कंपनी प्रोफाइल किस में काम करती है उसके रिलेटेड देखिए ना आप। ट्रांसमिशन में काम करती है, डिस्ट्रीब्यूशन में काम करती है, स्विच यार्ड में काम करती है, जो जो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है, प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। आपके सेफ्टी रिले से क्वेश्चन आएंगे, इंडक्शन मोटर से क्वेश्चन आएंगे आपके, एंड सिंक्रोनस सिंक्रोनस जनरेटर से क्वेश्चन आएंगे जो कि जनरेशन में काम में आता है। फिर हाइड्रो में आपके में काम में आएगा। तो यही सब आप एरिया, आप इस तरह से आप सेलेक्टिव बनिए ना, क्योंकि सब्जेक्ट काफी वास्ट है, उतना प्रिपेयर हो नहीं पाएगा। तो कंपनी का क्या प्रोफाइल है और आप किस में काम एमटेक कर रहे हैं, आप उस पे काम कीजिए, वर्क स्मार्टली। जनरेशन है तो जनरेशन के बारे में देख लेंगे हम, मोटर। उसका रिन्यूएबल पे भी हम काम करेंगे, रिन्यूएबल पे कंपनी काम कर रही है कि ना, रिन्यूएबल से भी क्वेश्चन आते हैं, गवर्नमेंट के कुछ पॉलिसीज आते हैं। ठीक है, yes, sir. ओके अभिषेक, बेस्ट ऑफ लक। Okay, sir. Okay. Anything else, Abhishek, you want to ask?
No, sir. ओके, सो प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। और देखो यार, पॉइंट होता है कि नॉलेज के साथ अगर कॉन्फिडेंस होगा तभी वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है। सो नॉलेज Yes, sir. प्लस कॉन्फिडेंस यू नीड टू शो। बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी नहीं बनना इंटरव्यू में कि मुझे ओल्ड आईआईटी में नहीं मिला इलेक्ट्रिकल, इस चक्कर में मैंने ये ले लिया। तो उससे ये रिफ्लेक्शन जाता है कि यू आर अपॉर्चुनिटी सीकर, सिंपल चीज है। हाँ बताने का तरीका होता है एक। अल्टीमेटली इसका मतलब ये हो ना, तुमने एक सीट वेस्ट कर दी आईटी खड़गपुर में। तुमने बस ये देखना था कि वहां पे जितना टाइम कटता है तो चीजें वही बता रहे हैं, बट तरीके से बतानी होती है, जैसे हमने मोल्ड किया था स्टार्टिंग में, राइट। ओके। और ये तुम्हारे पास है अपॉर्चुनिटी लास्ट होगी शायद Yes, sir. 2022 के बाद से। और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में प्लेसमेंट होती है? Yes, sir. 100% placement previous year. ठीक है तब। अच्छा ट्राई कीजिए इसके लिए आप। Yes, sir. ओके अभिषेक, राइट। Sir. ओके, थैंक यू। Thank you.